मैं रिपीट करता हूँ आपके लिए 3 मुद्दे जिस पर हमारी फिलॉसफी टिकी हुई है तरक्की की, जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। सेहत, शिक्षा और संस्कार। Ati Vishisht Seva Medal. He retired from the army in 2015 after a very illustrious career for 38 years. He joined army after having done his bachelor in architecture from Roorkee, which later on University of Roorkee became IIT Roorkee. You are all familiar with. But otherwise, most of his career in the army has been that of a soldier. He has been with different formations. Formations means brigade headquarters, div headquarters. You are all familiar. I have taken a class for you on army, so you understand the term formations. And he had a very glorious tenure in his 38 years of service. I will only mention a few of those things because you are not much familiar about the army terminologies. He retired as a Lieutenant General. You know that is the second highest rank in the services or in the army. He has been a tremendous sports person. Rowing and sailing are his events. And in these events, as a team member and also as an individual, he has taken part in 1982 Asian Games, which were held in Delhi, and thereafter in 1986, next Asian Games, which were held in Seoul, South Korea, he was representing our country. He has been a sailing solo champion from 1982 to 1986. As regarding his army career, as I said, he probably after commanding his regiment, he has been generally out on various staff assignments. He has been on UN peacekeeping role. We have here in Jaipur, Siberia headquarters. Now he has commanded 2 area headquarters, which is a higher level formation. Maharashtra, Gujarat, Goa area headquarters, that is located in Bombay, and Uttar Bharat area headquarters, that is located in Bareilly, if I remember correctly. So he was General Officer commanding of these 2 areas. So there is lot I can talk about him and about his 38 years of service in army, but basically we requested him to come here and share his thoughts with you so that your motivation to join defense is further strengthened. And therefore, I will not speak for a very long time. I will request General Vishambar sir to please come here and share his thoughts with you. Please come. आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है पीछे? Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. ओके। सो सर फ्रैंकली जब प्रमोद ने मेरे को बताया कि सर डिफेंस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट में आ जाओ और बच्चों से कुछ बातचीत करो, सो जब आप लोग इतने एक्सपर्ट बैठे हैं तो मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि बच्चों से मैं क्या बातचीत करूं कि और उनको मैं क्या बताऊं। तो ऐसा करेंगे कि मैं कम बोलूँगा और आपकी अगर कोई डाउट है और कुछ पूछना चाहते हैं और कुछ आप लोग जानना चाहते हैं तो उस पर ज़्यादा बातचीत करेंगे। मैं आपसे शुरू में 2-3 बातें करूँगा कि हमारे देश में जब हम बच्चे थे आपकी उम्र के, तब उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी यंगस्टर के सामने जो आज हैं। सो आपको पहले
ये समझ लेना चाहिए कि इंडिया किसी से कम नहीं है। आज के मॉडर्न भारत में है आप, जो प्रोग्रेस कर रहा है इकोनॉमिकली हर फील्ड में, और हर फील्ड में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। तो आप चाहे भले ही डिफेंस सर्विसेज में जाएं, या IAS बने, IPS बने, या किसी और स्ट्रीम में जाएं, आपके लिए, या बिजनेस करें या कोई कंपनी खोलें, अपनी स्टार्टअप खोलें, फील्ड इज़ वाइड ओपन एंड अपॉर्चुनिटीज़ आर ह्यूज। सो अगर आप यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं और आप आर्मी में अफसर बनना चाहते हैं, सारे अफसर बनना चाहते हैं? Yes, sir. कोई ऐसा तो नहीं है कि जो कोई अफसर ही हैं, अफसर ही बनना चाहते हैं ना यहाँ पे? Yes, sir. तो अगर आप आर्मी में अफसर बनना चाहते हैं और किसी वजह से खुदा न खास्ता आप नहीं बन पाए, तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत ऐसा देखा है कि जो लोग SSB में फेल हो गए और IAS बन गए और सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिटायर हुए हैं। आपको पता है अब्दुल कलाम जी जो हमारे प्रेसिडेंट थे, वो एयरफोर्स में सक्सेस नहीं हो पाए थे SSB में। सो SSB थोड़ा सा ट्रिकी सब्जेक्ट है, जितना मैं समझता हूँ SSB को, क्योंकि मैं कभी SSB में पोस्टिंग नहीं रही, न मैंने कभी SSB में इंटरव्यू किए, न मैं कभी GTO रहा हूँ। पर जैसे हम अपने यंग ऑफिसर्स को रेजिमेंट में देखते थे और हम क्या देखते थे कि उनमें कि यंग ऑफिसर कैसा होना चाहिए, वो 2-4 बातें मैं आपसे ज़रूर करूँगा। सो पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आप जिस बैकग्राउंड से भी आते हैं, वो बैकग्राउंड आपकी स्ट्रेंथ है। अब हम लोग जो हैं डिफरेंट इन्वायरमेंट में पैदा होते हैं, अब उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे मैं एक किसान के घर में पैदा हुआ, एक छोटे से गांव में जिसमें 13 घर थे, राजस्थान में जिसको धाड़ी बोलते हैं। आई कैन टॉक इन इंग्लिश, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हिंदी में बात करेंगे, बिकॉज आजकल SSB में आप हिंदी में भी बात करोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लैंग्वेज जो है अभी हमारे यहाँ बैरियर नहीं है कि आप अंग्रेजी नहीं बोलोगे तो SSB में रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा कोई पंगा नहीं है बिल्कुल। सो मैं ऐसे गांव में पैदा हुआ जहाँ 13 घर थे टोटल, एंड देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी, देयर वाज नो रोड्स, एंड ड्रिंकिंग वाटर वाज ओनली कुआं, जिसमें राजस्थान में देते ना, जो पहले लेडीज जाती थी और पानी सिर पर लेके आती थी ना, उस काइंड का। सो टिल 12th आई स्टडीड इन अ विलेज स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, हिंदी मीडियम, और जिसमें हम लोग अपनी बोरी शुरू में तख्ती, क्या बोलते हैं उसको, तख्ती बोलते हैं, पट्टी, आपने देखी नहीं होगी कभी, स्लेट, तो एडवांस वो था, बाद में आया। पहले पट्टी होती थी लकड़ी की, और उसको हम लोग जो है पहले वो उसको शाइन करते थे, फिर उस पर एक धागा होता था जो खड़िया चौक, उसको पानी मिला के वो बनाते थे हम एक ऐसा कोई सिस्टम, और फिर से लाइन खींचते थे, और जब लाइन खींचते थे फिर उस पर लिखते थे, जो सुलेख जो होता है, और अपनी बोरी बिछा के नीचे बैठते थे, घर से लेके जाते थे बोरी। स्कूल में वो भी नहीं था कि कोई जो है, फिर बाद में फर्श वगैरह आ गए, एक भाई एक लाइन में बिछा दो, इनको बिठा दो। ऐसे हम प्राइमरी स्कूल में पढ़े, इस टाइप के प्राइमरी स्कूल, और गांव में, और हिंदी मीडियम, और वहाँ से हम IIT रुड़की चले गए। एंट्रेंस एग्जाम दिया 12th के बाद, और पहली बार में IIT में, तब वो यूनिवर्सिटी रुड़की थी और बेस्ट यूनिवर्सिटी थी उस टाइम पे इंडिया की, नॉर्थ इंडिया में, और मेरे को एक ही एग्ज़ाम दिया, एक ही बिल्कुल, और खुद अटेम्प्ट भी नहीं किया, और पहली बार में सेलेक्ट हो। अब मैं क्यों सेलेक्ट हो गया, मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। कि हमारे टाइम पे, और अभी आप लगा लो, 2 ही एम होते थे, 2 एम, सेहत बनाओ और काम करो, फादर की हेल्प करो और पढ़ाई करो। हमारे फादर और मदर दोनों जो हैं अनपढ़ थे। मेरे फादर अंगूठा लगाते थे। आपको कभी स्कूल नहीं गए, न मेरी मदर ने कभी स्कूल देखा। तो हम लोगों को घर पे कोई गाइडेंस अवेलेबल नहीं थी कि कोई घर पे हमारी कुछ चेक भी कर दे। और मेरे पिताजी रेसलर थे। मैंने प्रमोद को एक बार किसी स्कूल में एक कहानी सुनाई थी। वो नहीं चाहते थे हम पढ़ें, वो कहते थे कुश्ती लड़ो, और इससे अच्छा कोई गेम नहीं है। तो हमें बचपन में खूब दाव सिखाए गए, कलाजंग कैसे मारते हैं, मैं दंगलों में, गांव के दंगलों में बचपन में था छोटा, कुश्ती लड़िए फादर को खुश करने के लिए कि अगर मैं कुश्ती जीत जाऊंगा तो हमारे पिताजी खुश हो जाएंगे, ऐसे वहाँ जाके। पर उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि भाई तुम पढ़ोगे भी कि नहीं पढ़ोगे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो हमको किसने पढ़ाया? गुरु, जो
प्राइमरी में जो टीचर थे जो पढ़ाते थे। सो आई डोंट नो आप यंगस्टर के आजकल क्या विचार हैं, पर हम जैसे लोग जो हैं, जो ट्रेडिशनल जो हिंदुस्तान की और भारत की जो शिक्षा की जो परंपराएं रही हैं, गुरु शिष्य परंपरा, उसके हम प्रोडक्ट हैं। अगर मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, तो मैं उसी परंपरा का एक प्रोडक्ट हूँ, जो गुरु शिष्य की जो परंपरा रही है कि जो गुरु ने बता दिया वो हमने कर दिया। सवाल नहीं पूछा कि ये गलत और सही है, कि भाई गुरु बोल रहे तो सही ही होगा, और हम वही करते थे और फादर की हेल्प करते थे। मैंने बचपन में हल चलाया है, जैसे फादर से गई फीस दे दो, अच्छा फीस चाहिए तो हुक्का, कितने किसान के बच्चे हैं यहाँ गांव से, काफ़ी है। हुक्का देखा है कभी? हुक्का नहीं देखा? कोई है जाट परिवार से थे? हाँ, हुक्का पीते थे पहले, फरसी जो लगाते थे, कहते हुक्का लेके खेत में आना, और उनको हम हुक्का देते थे और वो जो है अपना मिलके गुड़गुड़ाते थे और हम जो है खेत जोतते थे। कहते जब ये हो गया अब तू चला जाए स्कूल में। सो पूरा घर का काम किया है। वो जानवर होते थे किसान के परिवार में, दूध वूध होता था उसके। पर दो चीज़ जो हुई हमारे साथ में, फादर के साथ में, एक तो कभी खाने की कमी नहीं हुई कि तुम पढ़ाई करो ना मत करो, पर 1 लीटर दूध जरूर पियो रोज, और उसमें भी घी मिला के, अंडा कुछ भी डालो, बट सेहत, कहते हैं ये सेहत फिट होनी चाहिए। और टीचर स्कूल में पढ़ाते थे। सो एक यंगस्टर की मेरे हिसाब से अगर उसकी सेहत अच्छी है, हेल्दी है, मैं ये नहीं कह रहा कि फिजिकली हेल्दी है, मेंटली भी हेल्दी है और इमोशनली भी हेल्दी है। इमोशनल हेल्दी जो फिटनेस ज़्यादा ज़रूरी है आज के ज़माने में। अगर वो हेल्दी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर उसके साथ में आपका कमिटमेंट अगर आ जाए कि भाई हमने कुछ करके दिखाना है, बिकॉज हम नहीं चाहते थे कि हमारे पिताजी जिस हालत में हैं और जैसे पैदा कर करा के, क्योंकि खेती का ही जरिया था इस आमदनी से अब हम कैसे चलेंगे आगे, हम बहुत सारे हैं, कैसे पढ़ पाएंगे आगे, कि हम कुछ करते हैं। और अगर हमारे देश में कुछ करना है तो एक ही तरीका है तरक्की का। जैसे हम जैसे परिवार हैं, हम किसी धनाढ़ के और किसी भामाशाह के तो बच्चे थे नहीं कि किसी बिग इंडस्ट्रियल फैमिली में पैदा हुए हो, सिंपल किसान परिवार में पैदा हुए। तो हमारे लिए शिक्षा ही एक रास्ता था तरक्की का, कि अगर हम ठीक से पढ़ गए तो हम तरक्की हो जाएगी। तो हमने हमेशा उसी पर फोकस दिया। 12th तक तो मेरी 10th यूपी बोर्ड में 10th में 9th पोजीशन आई थी, और बहुत टफ बोर्ड था उन दोनों यूपी बोर्ड। फर्स्ट 60% किसी के मार्क्स आ जाते थे ना फर्स्ट डिवीजन, हल्ला मच जाता था कि ये फर्स्ट डिवीजन आ गया। मेरे 81% मार्क्स आए थे 10th में, 9th पोजीशन यूपी में, तो नेशनल स्कॉलरशिप मिली। फिर 12th दिया, ऐसे ही 12th में मार्क्स आ गए। फिर रुड़की पहुंच गए तो उद्धार हो गया। एक बार आप IIT रुड़की जैसे इंस्टीट्यूट में चले जाओ और फिर आप वही मुद्दों को वहां करो कि सेहत, शिक्षा और संस्कार। मैं रिपीट करता हूं आपके लिए 3 मुद्दे जिस पर हमारी फिलॉसफी टिकी हुई है तरक्की की, जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। सेहत, शिक्षा और संस्कार। और संस्कार क्या है? मिले हमें विरासत, सिखाए बड़ों ने, कि जो फादर ने कर दिया वो मान लिया, माने वो बोल दिया, ठुकाई भी हो गई किसी बात से, हमने शरारत हो जाती है कभी कभी बच्चों से, तो कभी मुड़ के नहीं देखा कि क्या हुआ, और ऐसे ही पलते थे। आजकल बदल गया थोड़ा सा, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं बच्चे, पर थपेटे रोज लगी जाते थे ना किसी न किसी रूप में पेरेंट्स से, ये नहीं हो रहा, पढ़ाई में अच्छे होते हुए और सारे काम करते हुए कुछ न कुछ। तो जो हमें जो संस्कार मिले, फिर गुरुओं ने जो सिखाया, जो संस्कार दिए, बच्चों बड़ों की इज्जत करो, ठीक है, आपने सोसाइटी के लिए पॉजिटिव करना है, अपने एक दूसरे नेचुरल लाया। और जॉइंट फैमिली में वैसे ही आ जाता था, अपने आप ही आ जाता था कि मैं ही नहीं हूँ, और लोग भी हैं मेरे साथ, तो अगर मैं कर रहा हूँ अच्छा तो दूसरों की हेल्प करो, ठीक है। फिर हाई लेवल पर जब हम आर्मी में आ गए तो फिर संस्कारों में राष्ट्रहित आ गया, समाज हित, दुनिया भर की चीज़ें फिर आगे आ गई। पर उस टाइम पे संस्कार जो एज ए स्टूडेंट जो हमें था कि भाई आपने पेरेंट्स की बात सुननी है, बड़ों की इज्जत करनी है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, आपने बीड़ी नहीं पीनी, सिगरेट नहीं पीनी, किसी बुरी आदत में नहीं पड़ना है, ठीक है। और आपने फिर रिपीट करूँगा आपको 2-3 बार, फिर मैं दोहराता रहूँगा इसको, कि शिक्षा, सेहत और संस्कार, इन पर फोकस करके रखो, आप तरक्की बिल्कुल कर जाओ। सो एक तो ये
तो मैं आपसे जो कहना चाहता था कि हमारी जो बैकग्राउंड जो है वो कभी हमारी वो नहीं होती कमजोरी। कभी आपको अपने में ऐसी भावना आए कि नहीं भाई मैं कभी ऐसे घर में पैदा हो गया, या हमारे पास ये साधन नहीं थे, या मेरे तो स्कूल नहीं था नज़दीक, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आ गए, कोई कॉन्वेंट में पढ़ के आ रहा है, या मेरे से इंग्लिश अच्छी बोल लेता है, या इसकी पर्सनैलिटी मेरे से अच्छी है। कभी इस टाइप की कंपैरिजन में कभी पढ़ना नहीं, आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। आप जो हो, जहां से भी पैदा हुए, बेस्ट हो, वो आपकी बैकग्राउंड है और आपको उस पर गर्व होना चाहिए, घमंड होना चाहिए कि मैं इस बैकग्राउंड से पैदा हुआ हूं। जो भी हो, हम घमंड से बोलता हूं, जहां भी गया, जब भी पहले बोलता था बचपन में कि भाई हमारे फादर जो है अनपढ़ है, पर हम पढ़ गए, और मैं ही नहीं पढ़ा। आपको पता, मेरा छोटा भाई सर्विंग रियर एडमिरल है नेवी में, 2 स्टार, जो मेरे से छोटा। तो पहले मैं गया, फिर उसको लगा दिया कि भाई अभी तुम आ जाओ, एक दूसरे को संभाला। आज सारे घर में कोई नहीं है, देखो सारे, कोई इंजीनियरिंग में चला गया, कोई बाहर चला गया, बट सारे कुछ ना कुछ अपने आप कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। किसी ने डिफेंस में नहीं आना था, उसकी मर्जी थी, कोई और फील्ड में चला गया। तो आपके लिए जो बता रहा था दोबारा से कि आपकी बैकग्राउंड बिल्कुल भी वो नहीं है कोई हैंडीकैप। आपको गर्व होना चाहिए और सीना तान के बोलो कि भाई मैं इस बैकग्राउंड से हूं और मैं किसी से कम नहीं हूं। तो आप में अपना जो कॉन्फिडेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस, तभी आपको ताकत मिलेगी कुछ करने की। दूसरी चीज मैं आपको एक जो शेयर करना चाहता हूं, पर्सनल इंडिविजुअल, उससे कभी कभी हमारे पास ना बहुत नॉलेज होती है। जैसे मैं पढ़ जाता हूं, काफी पढ़ लेता हूं, पर मैं कभी जब टफ सिचुएशन आती है उसमें अच्छा नहीं कर पाता। मैंने काफ़ी लोगों को, जब मैं सीनियर कमांड में मास्टर जी था, जब बन गया वहाँ आर्मी और कॉलेज में, स्टूडेंट जो मेरे स्टूडेंट थे, आर्मी ऑफिसर, ब्लैंक होते हुए देखा एग्जाम में, ब्लैंक, वो ऐसे लेके बैठ गया, कुछ नहीं लिख पा रहा। हमने बोला कुछ लिखो, रोने लगा, ऐसा कुछ नहीं आ रहा मुझे। यार तुम तो आर्मी ऑफिसर, यार ऐसे तो नहीं हो सकता, लड़ाई कैसे लड़ोगे? लाइव सिचुएशन बता रहा हूं मैं आपको, लाइफ की अपनी। उसको थपड़े फपड़े मारे, कुछ किया, उसको कुछ किया कि कहीं से तो याद कर। बिकॉज उसने क्या किया, अपने आप को इतना प्रेशर में डाल दिया, इतना प्रेशर, सेल्फ क्रिएटेड, कोई प्रेशर नहीं है। बाद में उनसे बात करी, फ्रेंड बने, मैंने क्या हुआ था उसमें जाके, कितना प्रेशर था कि तो आई ग्रेडिंग, मतलब हमारे यहाँ जैसे कोर्स में जाओ ना, एक इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग होती है, आप अच्छा करो तो इंस्ट्रक्टर बन जाओगे उसी में जाके। तो फिर मैंने उसको अपनी फिलॉसफी बताई कि जब मैं स्टूडेंट था तेरी तरह, मैं क्या करता था, रोज मार्केट में जाता था, रोज घूमता था, तंबोला खेलता था और पढ़ लेता था आगे शाम को, बिना किसी के एग्जाम दे दिया और कोर्स टॉप कर दिया रिटर्न। न कोई प्रेशर, क्यों, हम किसी से कंपटीशन में थे ही नहीं, न किसी से पूछा, और अपने आप हो गया। भाई तुमने अपने आप को इतना प्रेशर में डाल दिया है तो कैसे परफॉर्म करोगे? तो मैं अपने इससे तजुर्बे से आपसे शेयर कर रहा हूं कि कभी भी अपने आप को इतने प्रेशर में मत डालो। जैसे क्या होगा, एसएसबी में फेल हो जाओगे ना, फेल हो जाओगे ना, दुनिया तो ना खत्म होगी ना, बहुत कुछ हो जाएगा, पर आप जो है इतने प्रेशर में जाओ और वहां करो तो पक्का फेल होगे। अगर आपको अपने ऊपर इतना प्रेशर डाल लोगे तो पक्का फेल होगे। कभी भी अपने आप को प्रेशर में इतना नहीं डालो जिससे कि आप खुद ही के प्रेशर में खुद ही जो है धराशायी हो जाओ। बेस्ट वे इज, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एबिलिटी टू कोप, एक अंग्रेजी का शब्द है, लीडरशिप में आता है या मैनेजमेंट में पढ़ लो, योर एबिलिटी टू कोप। सक्सेस का सबसे बड़ा एक जो फैक्टर है लाइफ में वो है योर एबिलिटी टू कोप। आपके पास में नॉलेज है, कुछ चीजें आप बदल नहीं सकते, कुछ चीजें आपके कंट्रोल से बाहर है। अब जैसे ये गर्मी हो रही है ना, तो ये कंट्रोल से बाहर है। आई एम जस्ट गिविंग यू वेरी सिंपल एंड रूड एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल। अब गर्मी बाहर से बाहर है, तो आप क्या करोगे कि भाई इसको बर्दाश्त करना है। अब कैसे बर्दाश्त करना है, या तो मैं घर के में बैठ जाऊं कि भाई मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा,
ठीक है, मैं नहीं आऊँगा ऐसी गर्मी में बाहर, कहीं नहीं जाऊँगा, ना पढ़ूंगा ना कुछ करूँगा। मैं तो सुबह इसने बोला, प्रमोद ने 18 होल गोल्फ खेल के आया 4 घंटे, 10 बजे घर पहुँचा, नहाया वहाया, थोड़ा सा रेस्ट किया, वाइफ के साथ एक मूवी देखी और आपके सामने भाषण देने आ गया। मैं बोल सकता था कि यार मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, मैं क्यों जाऊँ, मेरे को क्या मिलेगा, और इतनी गर्मी में, मतलब अभी तक गाड़ी ठंडी नहीं हुई, बाहर खड़ी, इतनी गर्मी थी। बट देन यू डेवलप एबिलिटी टू कोप, कि सर्कमस्टांसेस मेरे कंट्रोल में नहीं है। बहुत बार ये आपके सामने आएंगे उदाहरण, बहुत सारे। आप जैसे सर्विस में आ जाओगे, बॉस नहीं चुन सकते, सबॉर्डिनेट नहीं चुन सकते, आप कहाँ पोस्टिंग हो गई वो नहीं चुन सकते, आप वेदर आपके खिलाफ हो, दुनिया भर की चीजें होती हैं। बट योर उस टाइम पे जो एबिलिटी टू कोप जो आपको, तो आपने अपने आप को कंडीशन बनाना है, और ये कंडीशनिंग अगर आप खेलते हो ना तो अपने आप आ जाएगी। तो आप में से कितने लोग हैं जो स्पोर्ट्स खेलते हैं? बहुत बढ़िया, बड़ी खुशी की बात है। देखो, खेल जो है एक ऐसा फील्ड है जहां आपको अपने आप नेचुरल ट्रेनिंग मिल जाती है, एबिलिटी टू कोप, कि आप हार भी जाओगे तो ज़्यादा निराश नहीं होगे, खेल रहे हो, गर्मी है तब खेल रहे हो, अच्छी वेदर है फिर खेलोगे, मतलब। पर कम से कम एक स्पोर्ट्स एक ऐसा जरिया है कि मैं चाहता हूं आप जो जितने यंगस्टर हो, कि आप जहां भी हैं और जिस फील्ड में भी हैं, चाहे आर्मी में तो पक्का खेलोगे अगर आर्मी में आ गए, तो अगर नहीं भी आर्मी में सेलेक्ट होते हैं, पर कोई ना कोई एक स्पोर्ट अपनी लाइफ का हिस्सा बना दो अभी से, कि मैं एक स्पोर्ट जरूर खेलूंगा, वो आपको हेल्प करेगा विद एबिलिटी टू कोप। डायरेक्ट वो है ये तरीका। फिर आपका जो अगला जो आता है, आपको सक्सेस देगा लाइफ में आगे जाके, कि आप नेचुरल रहना है, जो हो वो बनना है, कभी भी किसी को दिखाने में, इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करना। बहुत से ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जिनसे मैंने बात करी है, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं करता, बस गांव में जब जाता हूँ रहता हूँ तो बच्चे आते हैं जिनका रिटर्न हो जाता है, और काफ़ी बच्चे ऑफिसर बन गए हैं। मैंने नहीं बनाया कि मैंने उसको कोई दिया है, बट उनसे बातचीत करते हैं हम एक घंटे, उनसे पूछते हैं कि भाई जस्ट टू गेस कि बच्चा SSB क्लियर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। उसमें वन ऑफ द मेजर जो मैंने वीकनेस देखी है बच्चों में, वो जो हैं वो आर्टिफिशियली प्रोजेक्ट करना चाहते हैं अपने आप को, जो आप हो नहीं, और वो लोग जो हैं फट से पकड़ लेगा। मतलब आप जो है 1-2 बार किसी को वो सट्टे मार दोगे। जब हम जब रुड़की में पढ़ते थे ना, एक शब्द होता था आपस में, फेंकू। एक दूसरे को बोलते थे ये फेंकू है, मतलब वो फेंकता रहता है सारे टाइम। तो आप एक बार किसी को इम्प्रेस कर लोगे, और ज़्यादातर गर्लफ्रेंड बनानी हो तो ऐसे फेंकते हैं, चल भाई मेरी कोई इस बहाने शायद कोई गर्लफ्रेंड बन जाए। मैं कॉलेज लाइफ की बात कर रहा हूँ आपसे, जो हम हॉस्टल में रहे और कॉलेज लाइफ से निकले हैं, तो फेंकते हैं। रियल लाइफ में चलेगा नहीं। सो आपने न कोई ऐसे एक्स्ट्रा शब्द इस्तेमाल करने हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करते। मैं आप समझे, बिकॉज जिस आप बैकग्राउंड से आए हो, जिस उससे माहौल से आए हो, जब कोई बात करोगे ना, अब जैसे कोई पॉलिटिशियन का बात करे बेटा, या उसका बात करे तो भाई इसके बाप में कुछ है तो वो कुछ बोल दे, बात है। पर आप बोलो कि मैं उधर से हूँ, और एक नैरेटिव क्रिएट कर लो अपने आप के, जैसे एक फेक प्रोफाइल बनाते हैं ना फेसबुक में, वो दिखा के लोग जो है क्रिएट करते थे कोई नैरेटिव सोशल मीडिया के टाइम में। अगर आप ऐसे उसमें पड़े तो आपका, मैं ज़्यादा हार्श वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, विनाश जो है पक्का है। बिकॉज पीपल विल सी थ्रू यू। आप मूर्ख नहीं बना सकते। अब जैसे आपके सब लोग बताएंगे SSB में आपको 4-5 लोग देखते हैं डिफरेंट एंगल से, पर वो एक ही चीज़ देखते हैं कि तुम आर्मी में अफसर बनने लायक हो कि नहीं, और वो पता कर लेंगे कि आप जेन्युइन हो, रियल हो, या आप फेंक रहे हो, या आप बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे हो। सो कभी भी लाइफ में, कभी भी किसी फील्ड में ये बनाने की कोशिश नहीं करना। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं फरकियां गली पे था, पाकिस्तान बॉर्डर पे 91 में, और मेरा कंबोडिया का UN का इंटरव्यू आया। मैं खिलाड़ी था तो मेरे को आर्मी के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। मैं 7-8 साल खेला इंडिया के लिए, मैंने कोई नौकरी नहीं करी फौज में ज़्यादा। तो उसमें एक हमसे सीनियर थे, बड़े ब्रिलियंट ऑफिसर,
एक उनसे, एक मेरे से 1 साल सीनियर, 2 साल सीनियर, मतलब ब्रिलियंट सोल्जर, कोर ऑफ इंजीनियर्स के। एक वैकेंसी थी डिमाइनिंग के लिए, जो माइंस निकालते हैं ना ज़मीन में थोड़ी, उसको सुपरवाइज करना था कंबोडिया में, बहुत सारी माइंस लगी थी। अब हम गए वहाँ से, बड़ी मुश्किल से दिल्ली पहुँचे, तो बर्फ़ पड़ रही थी, वहाँ से नीचे श्रीनगर से एयरक्राफ्ट पकड़ के फिर वहाँ पहुँचे। और हमने मान लिया था कि हम सेलेक्ट नहीं हुए, बिकॉज इनके सामने मेरे मन में ऐसा था कि मैं नहीं टिक पाऊंगा। जैसे आप जानते हो ना कि ये खिलाड़ी है और ये है, तो मैं नहीं टिक पाऊंगा उनके सामने। मैं हम तो शौक के लिए इंटरव्यू देने जाते, तो कुछ पढ़ा के गए, रास्ते में जो मेरे नोट्स थे किसी और को दे दिए, मैं तू पढ़ ले इससे। पर जब इंटरव्यू हुआ, जब मेरे से ज़्यादा सवाल पूछने लगे, जो मैंने बोला सब बोला, फिर उन्होंने पूछा कि कंबोडिया में ये क्या सिचुएशन है, तुम इसको बता सकते हो? तो मैंने कहा सर मेरे को नहीं पता कंबोडिया में क्या हो रहा है, मेरे को सिर्फ इतना पता है मेरी ब्रिगेड में क्या हो रहा है, जहाँ से मैं आया था, और उसके अलावा न वहाँ कोई न्यूज़ आती है, न कोई पेपर आता है, और बड़ी मुश्किल से तो सब फ्रेश राशन आता है, कभी आ गया तो आ गया। मिलिटेंट वैसे ही रास्ते में गोलियाँ से फायर वायर करते थे उसके ऊपर। तो मेरे को तो सिर्फ इतना ही पता है कि मेरी ब्रिगेड में क्या हो रहा है, मेरे को नहीं पता कंबोडिया में क्या हो रहा है। फ्रैंक मैंने बोला, आप बिलीव नहीं करोगे, तो जिनको मैं समझ रहा था ये महारथी हैं, तो अब कैसे सेलेक्ट हुआ मेरे को नहीं पता, और मैंने कोई खास अच्छा जवाब नहीं दिए थे, पर मे भी मैंने शायद ऑनेस्टी बोला। एक और लाइफ सिचुएशन एसएसबी की, मेरे को आज तक याद है। मेरी इलाहाबाद एसएसबी आई थी जब मैं, और टेक्निकल ग्रेजुएट सिर्फ एसएसबी देते हैं, वो रिटन सीटीएस नहीं होता। आप में हैं टेक्निकल ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट यहाँ हैं यहाँ पर, बहुत बढ़िया शाबाश। सो हम लोगों ने सीधा फॉर्म भरा, एसएसबी आ गया इलाहाबाद से। 5-8 दोस्तों ने फॉर्म भरा, किसी ने, सबने मना कर दिया कि हम नहीं जा रहे। सो मैं अकेला रह गया। कहते फिर यहाँ आईटी रुड़की में क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ इंजीनियर बनना था, फिर फौज में जाना तो वैसे ही चले जाते एनडीए के थ्रू, अब यहाँ आके 4th ईयर में ज़रूरत क्या है। तो सारे बैकग्राउंड, मैं अकेला गया वहाँ इंटरव्यू देने। मेरे को कुछ पता नहीं था एसएसबी क्या होती है। आप तो प्रोफेशनल गाइडेंस ले रहे हो, ज़ीरो पता कि एसएसबी क्या होती है और एसएसबी में होता क्या है, कुछ भी नहीं। बस वहाँ गए, उन्होंने कुछ पिक्चर दिखाई, और हमारे टाइम में स्क्रीनिंग नहीं होती थी। जो आए वो सारे के सारे 4-5 दिन सीधा निकलते थे। स्क्रीनिंग हुई, हमने कुछ लिख दिया, जीटीओ ने कुछ कराया वो कर दिया, ग्रुप डिस्कशन में सब बोल रहे थे, हमने भी कुछ बोल दिया बीच में। जब इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू वाले ने सवाल पूछा कि आप रुड़की से हो, कि अगर आपको सिलेक्ट कर लिया तो आप आर्मी ज्वाइन करोगे? मैं एक्चुअल इंटरव्यू की बात बता रहा हूँ जो आज तक याद है। मैंने कहा पता नहीं कि क्यों, तुम्हें पता नहीं तो यहाँ किस लिए आए हो, फिर एसएसबी देने क्यों आए हो? मैंने कहा सर आपने किराया दिया, 2nd क्लास का उन दिनों वो मिलता था फेयर, आपने किराया दिया, इलाहाबाद में एसएसबी है, संगम में नहा लिया, बस इतना बहुत है। फिर दूसरा मैंने बोला, मैं सर मैंने फादर को नहीं बताया कि मैं एसएसबी देने आया हूँ, मैं उनसे पूछ के ही बता सकता हूँ। उन्होंने सवाल पूछा कि आपकी सोच इंडिपेंडेंट नहीं है, दैट मीन्स आप इतने बड़े हो गए इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते। तो मैंने उनको उल्टा जवाब दिया, मैंने से बात ऐसी नहीं है कि मैं इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता हूँ, पर मेरे को इंजीनियर उन्होंने बनाया और उन्होंने पैसे खर्च करे मेरे ऊपर। मेरा कम से कम इतना फर्ज तो बनता है कि मैं उनको बताऊँ कि मैं एसएसबी दे रहा हूँ और मैं फौज में सेलेक्ट हो गया। मैं किसी को नहीं बताया अपने घर में कि मैं एसएसबी दे रहा हूँ, शायद वो आने भी नहीं देते यहाँ। 30 का बैच था, मैं अकेला सेलेक्ट हुआ, इतना सब कहानी करने के बाद में। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं अपना ब्रदर का बताता हूँ जो एक बार पहले एसएसबी में जो फेल हो गया था, फिर बाद में 2nd टाइम निकला। दुनिया भर की कहानी कि साहब राष्ट्र सेवा करनी है, यूनिफॉर्म से प्यार है, दुनिया भर की कहानी बना लो कोई। मैं बना कह सकता था दावे से, देन आई रियलाइज लेटर ऑन मैं क्यों बोल पाया और उन्होंने क्यों सेलेक्ट किया कि मैं आईटी रुड़की का पढ़ा हुआ था। और तभी मेरे से पूछ रहे थे वो कि आपको हमने सेलेक्ट कर लिया, ज्वाइन करोगे, बिकॉज बहुत कम लोग रुड़की और आईआईटी से फौज में आते हैं। ये हकीकत है, ये हकीकत है, क्योंकि मैं अपने वैसे अकेला ही पहुंच पाया था। अगर यही जवाब कोई और देगा तो मैच नहीं करेगा। सो जब भी आपके सामने सिचुएशन आती है कि जैसे मैं किसी का कॉपी कर लूं, और एक अब जैसे आप जो हैं एक ही यहाँ
ट्रेनिंग ले रहे हो एक ही सेंटर में और आपको एक जैसी सिखलाई है, पर आपका जवाब जो है एक जैसा नहीं हो सकता, बिकॉज आपकी बैकग्राउंड, आपकी मानसिकता, आपकी सोच डिफरेंट सोच है और वही इवेल्युएट करते हैं यहाँ पे। सो मैंने आपको यही जो बताया था वहाँ पे कि आपने सिंपल टर्म्स में ओरिजिनल रहना है लाइफ में, और ये फौज का ही नहीं है, एसएसबी का हो, आप जो हो और जैसे हो वैसे ही रहो। ऑनेस्टी, ईमानदारी से अच्छा कोई शब्द नहीं है लाइफ में, और अगर आपने डिफेंस ऑफिसर बनना है तो आपकी पूरी लाइफ ईमानदारी पे टिकी हुई। झूठ से सख्त नफरत है। अगर आपने गलती से भी झूठ बोल दिया और आप पकड़े गए, आप कभी आर्मी अफसर नहीं बन सकते। ऐसी चीज जो, तो जब भी आपने बता रहा हूं जिस लाइफ में, सीधा आंसर दो। सब हो सकता है किसी को अच्छा ना लगे, अगर नहीं आता है तो बोल दो मेरे को नहीं आता, पर सट्टे मत मारो। या में हम लोग क्या करते हैं, जब इवन लेटर ऑन जब अफसर बन गए, किसी अफसर से ही पूछ लेना, अफसर से पूछो, ये हमसे सीनियर है, प्रमोद से पूछ लो, क्या हो, किसी ने सवाल पूछ लिया और ऐसे कॉन्फ्रेंस में बैठे तो भाई तुम्हारा क्या व्यूज है, तो हमने कभी ये नहीं कहा कि मैं व्यूज दूँ, अगर आता था तो दे देते थे कि सर मेरे को टाइम दो, मेरे को भी पता नहीं है, मैं आपको आई कम बैक, मतलब सिंपल आंसर है, आई कम बैक टू यू, आई स्टडी एंड कम बैक टू यू। पर सट्टे नहीं मारे, और जिसने सट्टे मार दिए वो वहीं गया। तो लेटर ऑन यही आपने झूठ वूठ जो है ना, फिर देन यू आर प्लेइंग विद द लाइफ ऑफ द पीपल। सो मैंने आपको, जैसे पढ़ाई यहाँ नहीं खत्म होती, पढ़ाई अगर आर्मी अफसर बन गए ना तो आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो शिक्षा के बारे में बताया, सेहत के बारे में बताया, संस्कारों के बारे में बताया कि ग्राउंडेड रहो, और जो हमारे जो भारतीय संस्कृति के जो संस्कार हैं, बड़ों की इज्जत, पेरेंट्स की इज्जत, जो हमें सिखाए, जो हमारी विरासत है, जो हमारी ट्रेडिशंस रही है यहाँ पे, कि उस पर गुरु की इज्जत, उन पर चलो। एंड जो करना है मेहनत से, ओरिजिनलिटी के साथ में करो, हार्ड वर्क के साथ में। लास्ट बहुत लंबी है, मैं इसलिए आपको टाइम दूंगा अभी। जो आप कर रहे हो यू मस्ट एंजॉय। जो भी काम कर रहे हो, अगर मैंने रिटायरमेंट के बाद खेती करना शुरू किया तो मैं गांव में जाता हूं, रहता हूं, एंड आई एंजॉय खेती। अगर आप घर में झाड़ू भी लगा रहे हो तो एंजॉय दैट। अगर आपने सोच लिया कि पनिशमेंट है या छोटा काम है, आप अच्छी तरीके से झाड़ू नहीं लगा पाओगे। जो भी कर रहे हो, अगर आप उसको एंजॉय नहीं करोगे, आप सफल नहीं होगे। तो आई होप कि आप जो ये पढ़ाई कर रहे हो उसको एंजॉय कर रहे हो। किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। अगर प्रेशर में हो और किसी ने दबाव डाला है या पेरेंट्स ने, और फिर आ गए हो, तो जल्दी से छूट जाओ, निकल जाओ। अगर ऐसी सोच है ना कि नहीं पेरेंट्स ने जबरन भर्ती करा दिया यहाँ पे, प्रमोद को हम बता देंगे कि स्टूडेंट कम हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप इस एक्टिविटी को, पढ़ाई को, जो ट्रेनिंग कर रहे हो, इसको एंजॉय नहीं कर रहे ना, तो कभी सफल नहीं हो पाओगे। सो जो भी आप करो, जो जिस फील्ड में भी घुसो, जो भी सब्जेक्ट लो, वो एंजॉय करो। तो सोल्जरिंग जो है, जब आ जाओगे, एक पैशन है। इसमें लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, और इससे बढ़िया कोई सर्विस नहीं है अगर आपने अपने देश को देनी है, प्रोवाइडेड आप इसको एंजॉय करो। कि मेरे को आउटडोर लाइफ से अच्छी लगती है, रिस्क लेना अच्छा लगता है। जब कुछ लोग हैं ना रिस्क, मैं थोड़ा सा रिस्क के बारे में बताऊंगा आपको, रिस्क लेना अच्छा लगता है। जब तक रिस्क नहीं लोगे तो लाइफ भी नहीं बनेगी। थोड़ा बहुत रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, पर हम लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। पहले उसको एग्जामिन करेंगे, कैलकुलेटेड। सो ये जो आपने जो सोच बनाई है कि कभी भी कोई भी फील्ड, पेरेंट्स के प्रेशर में, पीयर प्रेशर में, कि मेरे फादर वो थे तो मैंने वो बनना है, इस चक्कर में कभी नहीं पड़ो। यू मस्ट become defense officers because you genuinely wants to become a defense officer and you want to enjoy कि वर्दी पहनी और जो सर्विस जो देना चाहते हो आप उसको एंजॉय करना चाहते हो नेचुरली, न कि किसी के दबाव में, न कि किसी के प्रेशर में, और न किसी को कोई प्रूव करने के लिए, बिकॉज आप एंजॉय करना चाहते हो। मैं IIT रुड़की से डिफेंस में इसलिए आया था कि मैं स्पोर्ट्समैन था
और मैं खेलना चाहता था। तो मेरे को किसी ने बोला कि अगर तुम खेलना चाहते हो तो एक ऐसी सर्विस है आर्मी जो आपको खेलने देगी। तो उन्होंने पूछा किस लिए आए हो? मैं खेलना चाहता हूँ, स्पोर्ट्समैन। मैंने खेला 7-8 इंटर और खूब खेला। जब मेरा मन भर गया फिर मैंने 86 सेशन के बाद में छोड़ दिया, फिर सोल्जरिंग। 2-3 चीजें जो एसएसबी के हिसाब से, प्रमोद इफ यू परमिट, टाइम है तो, फिक्स माइंडसेट इज वेरी डेंजरस। आपका जो फिक्स माइंडसेट है ना, हम लोग कभी एक माइंडसेट बना लेते हैं और फिर क्लोज कर लेते हैं, फिर उसमें कुछ नहीं घुसेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे रेजिमेंट के जेसीओ साहब, उनका बेटा एसएसबी में गया, तो मैं उसको टेलीफोन से थोड़ा सा गाइडेंस कर रहा था। तो उसने एसएसबी में जो इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि बेटा आप 12th में, आपका फेयरवेल हो गया, आपको प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है अपनी ऑफिस में। उनसे पूछा है कि अभी आप यहाँ से जा रहे हो, आप जो है 5 वीकनेस बताइए अपने स्कूल की। अच्छा, मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप सबने 12th करिए या जिस कॉलेज में करे हो, किसी ने इंजीनियरिंग कर रखी, ग्रेजुएट हो, जो भी डायरेक्टर, वाइस चांसलर, जब आप ग्रेजुएट हो रहे हो उसके बाद में आपको बुलाता है कि आप यहाँ इतने दिन रहे, आपने इतना देखा है, आप जो है 5 कमियाँ बताइए, और इंटरव्यू में नहीं, आपका क्या जवाब होगा? आप क्या जवाब दोगे? वो तो हमारे बेटरमेंट के लिए चाह रहे होंगे सर, सामने से वो तो कभी पूरा नहीं चाहिए मेरे सामने। आप क्या जवाब दोगे? आप पढ़े हो वहां, आपने देखा है, भुगता है, और कोई पूछ रहा है कि भाई आप जा रहे हो, अभी आप तो जा रहे हो, हमें क्या इंप्रूव करना चाहिए, आप 5 गलतियां गिना के चले जाओ। उस जेसीओ के बच्चे ने यही जवाब दिया, और जब उसने मेरे को बोला, मैंने कहा तू कभी सेलेक्ट नहीं हो सकता, कभी आर्मी अफसर नहीं बन सकता। मैं आपको रीजन बताता हूं इसमें। मैंने उससे पूछा, बच्चे से, कि तुम्हें ये जवाब क्यों दिया? उसका आंसर, हाउ कैन आई बी डिसलॉयल टू माई स्कूल एंड माई टीचर। तो मैंने उसको बोला कि इंटरव्यूअर ने आपसे लॉयल्टी के नंबर नहीं पूछे, उसने आपको टेस्ट किया कि आपका ब्रेन काम करता है कि नहीं करता है ठीक से, और क्या आप में एनालिटिकल पावर है कि वहाँ से 5 कमियाँ ढूंढ लो। अब हम लोग जो हैं आर्मी में, ये हमारा डेली रूटीन रहता है। सर रहे सीओ, हम जैसे कमांडिंग ऑफिसर थे, कोई जवान भी जा रहा है, ऑफिसर जा रहा है पोस्टिंग, या जवान पोस्टिंग जा रहा है, उसको ऑफिस में बुलाया जाता है या रिटायर हो रहा है, और उसको यही सीओ साहब पूछते हैं कि अब तुम यहाँ से जा रहे हो, अब इम्प्रूवमेंट गिना के जाओ। और सीओ साहब डायरी में लिखते हैं, और वो कोई तारीफ नहीं करके जाता कि वो सीओ साहब की तारीफ कर जा रहा हो कि साहब आपकी कमांड अच्छी थी। वो सीधा बताएगा आपको, साहब ये ठीक नहीं है, लंगर में ये नहीं था, यहाँ पे ये सिक्योरिटी के ये पॉइंट है, आप लिख लो। तो आपको जब इंटरव्यू वाला पूछ रहा है ना, वो आपसे पूछ रहा है कि आप में कोई भी ह्यूमन बीइंग परफेक्ट नहीं है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन परफेक्ट, ना कोई स्कूल परफेक्ट। आप हॉस्टल में रहे हो तो सर क्वालिटी ऑफ फूड वाज नॉट सो गुड, आप ऐसे कर सकते हो, टाइमिंग नहीं है, मेंटरिंग यहाँ ठीक नहीं है, रिलेशनशिप, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप में थोड़ी और पानी चाहिए। पर आपसे उसने 5 कमियां पूछी हैं। तो मैं सबसे पहले यही बोलता हूं कि आपको जब कोई पूछता है, आपको पहले सवाल समझ में आ गया, उसने क्या पूछा है, ठीक है, और फिर जो उसने पूछा है आपने जवाब वो देना है। उस बच्चे ने जो उसकी सोच में आया, मैं वही तो बता रहा हूँ कि सोच क्या होती है। तो एक क्लोज माइंड क्या है, एक हम लोग जो हैं जो टेस्ट करते हैं, मेरे ख्याल से जो देखते थे अफसरों में, इसमें एबिलिटी है कि नहीं टू जनरेट ऑप्शंस। और वो तभी आप ऑप्शन क्रिएट कर सकते हो जब आपका माइंड जो है ओपन हो, फ्लेक्सिबल हो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि हमने यहाँ से दिल्ली जाना है, आप मेरे को ऑप्शन जनरेट कर दो, कौन है ब्रिलियंट इनमें से? कोई है सर ब्रिलियंट बच्चा? हाँ, जैसे प्रमोद और डायरेक्टर साहब ने यहाँ से डिसीजन लिया कि यहाँ से दिल्ली जाएंगे आप सब लोग, अब दिल्ली जाने के ऑप्शन जनरेट करो। हाँ, भाई
भाई बस बस भाई कार, टैक्सी, मतलब बहुत सारे हैं, इतने सारे हैं। वॉकिंग, किसी ने बोला साइकिलिंग, भाई नॉट साइकिलिंग, ग्रुप बना के साइकिल करते जाएंगे सर, टाइम है तो पैदल। मतलब आई एम सेइंग कि इन इतने सारे ऑप्शन आप जनरेट कर सकते हो रूट के ऊपर। ये तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बोला है आपने, सिर्फ कि भाई कार मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, साइकिल जैसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। रूट मतलब डिफरेंट डिफरेंट रूट, आप ऐसे भी जा सकते हो। मतलब आप दिल्ली कहाँ से, दौसा से जा सकते हो, बीच में से शॉर्टकट ले सकते हो, साइकिल से जाओगे तो कुछ और रूट ले सकते हो। वहाँ से इतने सारे रूट्स अवेलेबल हैं आपके सामने। ग्रुप, कैसे ग्रुप बनेगा? तो ये जो आर्मी ऑफिसर्स में सबसे ज़्यादा जो असली जो क्वालिफिकेशन दी जाती है, हिज एनालिटिकल एबिलिटी एंड टू जनरेट वेरियस ऑप्शंस। एंड फिर जब आप जनरेट कर लोगे ऑप्शन, फिर उसमें से कौन सा बेस्ट है वो आप सेलेक्ट कर लोगे, सिचुएशन देखते हुए कि अगर ग्रुप में जा रहे हो, टाइम है और अच्छा वेदर है, जाड़े का टाइम है, साइकिल से चलते हैं। ऐसे टाइम में कोई पैदल नहीं चलना चाहेगा, कहते चलो गाड़ी से ही चलते हैं, फास्टर पहुँचते हैं। सीजन कौन सा है उसके हिसाब से यू विल टेक ए डिसीजन। बट आप इसको बोलते हैं कंसिडर डिसीजन। यू कैन टेक ए डिसीजन प्रोवाइडेड यू हैव द एबिलिटी टू एनालाइज एंड क्रिएट ऑप्शंस। तो हम लड़ाई के प्लान ऐसे ही बनाते हैं, सामने से अटैक होगा, दो साइड से होगा, ऊपर से होगा, पहले आर्टी फायर करेगी, ये बम्बार्डमेंट होगा, कैसे होगा, और ऐसे ऑप्शन जनरेट करके देन वी से ओके दिस इज द प्लान। फिर उस पर एक प्लान ए होगा, फिर एक प्लान बी होगा, अगर ये नहीं हुआ तो ये होगा, फिर कंटिजेंसी होती है कि ये नहीं होता ये होगा, ये फेल हो गया तो ये होगा। बट भी जितनी पॉसिबिलिटी हैं, जो हमारे माइंड में कैपेबिलिटी है, वो सारी एनालाइज करके, और एक पूरी टीम एनालाइज करती है। जी आर्म फोर्स में क्या है कि अकेला, वो कहते हैं अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, तो वी थ्राइव ऑन टीम, और आप खेलोगे तो अपने आप ही टीम मैन बन जाओगे। तो योर एबिलिटी टू एनालाइज एंड जनरेट ऑप्शंस, और ये तभी आएगा जब आप पहले सुनोगे, ठीक से पहले सुनोगे, ठीक है, सुनना और समझना, और फिर आप जो है उसका सोच के एंड देन यू अप्लाई योर माइंड एंड जनरेट ऑप्शंस। नॉट ओनली आर्म फोर्सेज में, इट विल हेल्प यू इन एनी कैरियर, इन एनी डिपार्टमेंट। जब आप इस तरीके से करोगे, आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना आना चाहिए, ठीक है। बिना रिस्क लिए लाइफ में सक्सेस नहीं मिलती। थोड़ा बहुत तो वो प्लंज हम कहते हैं ना, यू टू टेक ए प्लंज, कि घुसना ही पड़ता है, गर्दन जो है रखनी पड़ती है चॉपिंग ब्लॉक पे, और उसी के एडवांटेज मिलते हैं। जब ये सर कॉमनवेल्थ 2010 में दिल्ली में ब्रिज गिर गया, देखा था ना आपने, धड़ाम से गिरा था, जो सिविलियन ने जो ब्रिज बनाया 5 दिन पहले। तब जब मैं ब्रिगेडियर था एमओ डायरेक्टरेट में, और चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित ने हमसे रिक्वेस्ट वो की आर्मी से कि भाई जो आप ये ब्रिज बना दो। डिफेंस मिनिस्टर थे एंथनी साहब एंड चीफ थे वीके सिंह। तो मैं और डीजीएमओ हम दोनों को चीफ के पास गए, तो हमारे चीफ बोलते हैं कि पंगे क्यों ले रहे हो, मैं आपको इनसाइड स्टोरी बता रहा हूँ, तुम क्यों बना रहे हो? वैसा बना देंगे, आर्मी के लिए अच्छा है, बना देंगे, इसको टाइम है अभी, इनका फेल हो गया हम बना देंगे। कैसे बना दोगे? और वो तो सिविलियन ब्रिज था, इतनी जल्दी कैसे बन जाएगा, वैसे बना देंगे। कहते अच्छा ठीक है, चीफ मान गए। फिर डिफेंस मिनिस्टर ने बुला लिया, मैं और डीजीएमओ दोनों गए वहाँ पे सैटरडे को, आई स्टिल रिमेंबर अराउंड 12 o'clock। उन्होंने कहा बना दोगे? ऐसे बना देंगे, सेफ, मतलब बिल्कुल सेफ, इतनी जल्दी, ऐसे इतनी जल्दी बना देंगे, आप बोलो सही। नहीं सर, अगर नहीं बनाना देन यू आर सेक्ट। तो मैंने कहा सर ब्रिगेडियर तो बन गया ना, पहले बनाने तो नहीं बने, तुम यहीं इसी रैंक में रिटायर कर देना, पर कम से कम ब्रिज तो बनाने दो। वी मेड इन फ्लैट 24 hours, बिकॉज देन वी अप्लाइड आवर माइंड। आर्मी ने खड़ा कर दिया, उसको सिविल रूप भी दे दिया। उन्होंने 20 लाख रुपए दिए हमें, दिल्ली गवर्नमेंट ने, हमने 4 लाख रुपए वापस भी कर दिए, उसको पेंट कर दिया वाइट, पूरा लाइटिंग वाइटिंग करके, किसी को दिखे ही नहीं कि आर्मी ब्रिज है, उसकी काया पर लगती। वो ब्रिज पूरा सक्सेसफुल रहा, उसके बाद में हमने डिसमेंटल कर दिया। अभी मुंबई में बिफोर रिटायरमेंट हमने 3 ब्रिज बनाए मुंबई के लिए। ऐसे ही वॉर मेमोरियल
इसको पूरी कहानी पता है। कोई वॉर मेमोरियल नहीं था कारगिल में। जब मैं कर्नल एटम था IIT रुड़की का, हमने कहा वॉर मेमोरियल बनाते हैं। जब हमने पहली परेड करी तो बन जाएगा, नहीं बना देंगे। और वही शाम के फंक्शन में ओवर अ ड्रिंक आई टोल्ड द को कमांडर दिस इज नो वॉर मेमोरियल, एक नया वॉर मेमोरियल बनाते हैं। 527 शहीद हुए हैं इस जमीन पर, तो उनके लिए लीस्ट वी कैन डू ए कंस्ट्रक्टिव प्रॉपर वॉर मेमोरियल। तो हमारे GOC थे पैरा के, उन्होंने कहा कि सर ये IIT रुड़की का पड़ा हुआ है, आर्किटेक्ट है, इसको बना देगा। ये कुछ नहीं था, एक इन्फेंट्री बटालियन से एक आटा लेके हमने मार्क किया, मतलब चौक, हमारे पास जो चूना तत्व नहीं था मार्क करने के लिए, आटे से हमने आउटलाइन मार्क करी और फ्लैग लगा लगा के कि ऐसे बनेगा ये। वो सैंक्शन दे के चले गए कि बना दो, न कोई बजट न कोई पेपर पे डिजाइन, ऐसे करके और मेमोरियल बन गया। आज मॉन्यूमेंट है वो। आप द्रास वॉर मेमोरियल गूगल करो, मॉन्यूमेंट आएगा वो। 2004 में जुलाई से अगस्त में हमने उसकी शुरुआत करी थी। 3-4 साल लगे उसको बनाने में। क्या किया, रिस्क लिया। अगर मैं बोलता कि मैंने क्यों पंगे लेने, तो कुछ मिलेगा भी नहीं। हो सकता है इसीलिए हम लाइफ में सक्सेस हुए कि जब जरूरत पड़ी एडवाइस दी, बोल्ड हुए, रिस्क लिया और उसका रिवॉर्ड मिला। तो बिना रिस्क के कोई रिवॉर्ड भी नहीं है। बट रिस्क, जब रिस्क लेते हो तो अपनी कैपेबिलिटी देख लो। जैसे कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क लो, फूल हार्डी जिसको बोलते हैं ना, फूल हार्डी, कि फूल हार्डी नहीं बनो। एग्जामिन करो क्या आप ये कर सकते हो, ये पॉसिबल है और ये हो जाएगा। तो रिस्क लेना जो है बहुत ज़रूरी है लाइफ में, इफ यू वांट टू सक्सेस इन एनी फील्ड। बिजनेस में हो, वैसे हो। किसान भी रिस्क लेता है कि वो देखता है कि भाई फसल बोऊं कि नहीं बोऊं, फिर वो छोड़ देता है कि देखते हैं क्या होगा, कि बारिश होगी कि नहीं होगी। दुनिया भर की कहानी होती है। सो मैं आपसे जितना आपके लेवल पे, जितनी मेरी सोच थी, मैंने आपसे काफ़ी बातें कर ली। जितना मैं मतलब मैं कहानी बहुत है सुनाने के लिए, रिटायर्ड आदमी को बुला लो तो लगा रहेगा आपको सुनाने के लिए। आप बताइए आपने क्या करना चाहते हो? आप जो है कोई सवाल ऐसे, कोई मन में कोई, जैसे होता है ना कि आपको, आप ये तो प्रोफेशनल्स हैं, ये तो आपको डेली बेसिस पे गाइड करते हैं। टीम के लिए खेला 6 साल। मैं आपको अपनी लाइफ को बता रहा हूँ सम टोटल में। तो कोई तो चीज़ है कि देश जो है मेरिट को तवज्जो देता है, आपकी ऑनेस्टी की कदर करता है। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बता कि ये रिश्वत से ही पैसे कमाते हैं लोग, या ऐसे जैक है तभी लोग जो हैं, न कोई जैक न हम किसी को जानते थे, न हमारा कोई माई बाप किसी भी फील्ड में। सो हमारे देश में अगर आप में पोटेंशियल है कुछ कर दिखाने का, तो वाइड ओपन फील्ड है और आपको सारे लोग एनकरेज करेंगे। कोई नहीं आपके रास्ते में आएगा, प्रोवाइडेड ये आपके अंदर है। हाँ बोलिए आप। You've been hearing me, Pramod, on various things, on various issues about SSB, but what you heard from him and his that small brief that he still remembers about his SSB, and the question that interviewing officer asked him, are you sure you will join? And his reply, I'm not sure, I'll have to ask my father. And he said, क्या जरूरत है तुम, you can't take a decision on your own, why do you have to ask your father? And a very responsible reply. When I came for SSB, I never consulted him, and he spent all the money for my 4 years degree course, and I have to ask him before whether I join army or he desires something else. So number of things during his talk that he shared with us has got great amount of value, and I'm sure a lot of things that you heard from him in last about an hour or 45 minutes, I'm sure they will stay with you and will guide your life.